start with Gauss theorem and Stokes theorem, then Gauss law in magnetic and electric Okay. field. Gaurav, सर डाइवर्जेंस हो गया. Gurjeet, So we did about inconsistency in Ampere's law and displacement current. displacement current. Ish, Yes, sir. what topic we have covered? Any one topic? So in the last lecture, we discussed about inconsistency in Ampere's law, and then we discussed about Maxwell equations. Okay. So I think most of the topics have already been told by you. So the new concept of displacement current was discussed last topic in last lecture. Okay, and this displacement current has the value. What is the value? Epsilon naught times d phi e over dt. ठीक है, time rate of magnetic flux. So this is displacement current, or displacement current density is what? Displacement current density is epsilon naught times del E over del T. ठीक है, time rate of electric field. Okay, so whenever there is a capacitive part in our circuit, there is a displacement current, and if there is no capacitive part, there is no displacement current. तो जब भी हम अपने क्वेश्चंस में भी, न्यूमेरिकल्स में भी डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उस सर्किट में देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो कैपेसिटेंस, देन देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट करंट. और अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अंदर द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कैपेसिटर वाले सर्किट में the value of displacement current and the value of conduction current will be the same. So this is the findings of previous lectures. Okay, and then we got 4 equations. 2 of them were the divergence of electric field and magnetic field, and two of them were the curl of electric field and magnetic field. So collectively these 4 equations are known as Maxwell's equation. And there is a theorem that if the field is vanishing at infinite distance from its source, then the information about the divergence and curl is enough to find the value of that field at any of the point in the space. ठीक, और इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड they vanish at infinite distance because they vary as 1/r², और इसलिए डाइवर्जेंस और कर्ल इक्वेशन जो कि मैक्सवेल इक्वेशन है ये काफी हैं इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए. सो इन अ वे वी कैन से दैट होल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज कंसंट्रेटेड अराउंड द मैक्सवेल्स इक्वेशंस. ठीक है, लेकिन मैक्सवेल इक्वेशंस की हम बात करेंगे, इन्हें कैसे सॉल्व करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करें. ओके, तो कैसे फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, हम एक एक करके सारे मीडियम्स की बात करते हैं. पहले हम बात करते हैं फ्री मीडियम की, फ्री स्पेस, देयर इज नो फोर्स ऑफ एनी टाइप. ठीक, वैक्यूम हो सकता है, इवन एयर भी हो सकती है. ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की या फिर किसी इंसुलेटर की. ठीक, और उसके बाद हम बात करेंगे किसी मेटल की, कंडक्टिंग मीडियम की. तो फॉर स्टार्ट मैक्सवेल इक्वेशन आर दीज. ठीक है, इन्हें इसी तरह से याद रखना ऑर्डर से, E और B का ऑर्डर चलेगा और सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट देन क्रॉस प्रोडक्ट, डेल डॉट E, डेल डॉट B, डेल क्रॉस E एंड डेल डॉट B. ठीक, दिस इज कंडक्शन करंट एंड दिस इज कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. ओके, अच्छा, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो व्हाट इज द फ्री स्पेस? फ्री स्पेस में चार्ज कितना होता है? वैक्यूम, देयर इज नो फोर्स of any type. So the meaning of or the definition of free space or the vacuum is given by that there is no charge density. ठीक है, so rho is 0. अब चार्ज ही नहीं है वहां पर तो करंट कैसे होगा? ठीक है, there is no current density, so rho equal to 0 and J equal to 0. ठीक,
और अगर हमने इन दोनों वैल्यूज को पुट किया मैक्सवेल्स इक्वेशन में, देन वी विल गेट द मैक्सवेल इक्वेशन इन दिस फॉर्म. J 0 हो गया तो फोर्थ इक्वेशन वो चेंज हो गई, वहां से एक पार्ट कम हो गया. ऐसे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से रो 0 हो गया, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू 0. सो डाइवर्जेंस ऑफ E इज 0, डाइवर्जेंस ऑफ B इज 0. कर्ल ऑफ E will be given by the time rate of magnetic field and curl of B will be given by the time rate of electric field. इन्हें सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने का एक तरीका है, क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं. डेल ऑपरेटर को अगर कर्ल के ऊपर ऑपरेट कराएं या डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ऑपरेट कराएं तो क्या होगा. तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि डेल क्रॉस ई की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो अगर यहाँ पर भी किसी तरह से डेल क्रॉस ई हो जाए तो इन्हें सॉल्व कर लेंगे आराम से. डेल क्रॉस ई की जगह पे बी रख देंगे और इक्वेशन का मतलब होगा किसी एक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स ओनली, बी और ई. केवल इन दोनों की वैल्यू तो फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास 4 इक्वेशंस है, क्या करें. तो केवल 2 ही इक्वेशन काफी हैं. और उसमें भी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमेशा से ये हुआ करता था हमारे पास कि किसी इक्वेशन में से नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम कर दें. एक इक्वेशन ऐसी बनाएं जिसमें केवल एक सिंगल वेरिएबल. ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, या तो इस वाले इक्वेशन में से b को हटा दें, b की जगह पे कुछ ले आए, इस तरह से सॉल्व करें कि यहाँ पे b ना रहे, केवल e रह जाए, या फिर यहाँ से e को हटा दें, केवल b रह जाए. सो वी विल कॉल देम मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन. तो अब अगर फोर्थ इक्वेशन का कर्ल ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ल ऑफ E. ठीक, यहाँ जो भी होगा देख लेंगे. यहाँ हो जाएगा कर्ल ऑफ E और वी विल पुट द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ E. इसी तरह से अगर ये वाली इक्वेशन इसका भी कर्ल ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ल ऑफ B, और कर्ल ऑफ B की वैल्यू हमें पता है इन टर्म्स ऑफ E. सो दिस विल बी द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग देम. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो हम यही करते हैं. तो हमने थर्ड इक्वेशन उसका कर्ल लिया. थर्ड इक्वेशन थी डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी. केवल कर्ल ले लिया. यहाँ पर ये है स्पेस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एंड दिस इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो इसे डेल क्रॉस को अंदर भी ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा ये डेल ओवर डेल टी ऑफ डेल क्रॉस बी. इसे हमने पहले ऑपरेट करा दिया. ठीक है, और यहाँ क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी डेल क्रॉस ई. कर्ल ऑफ कर्ल के लिए एक आइडेंटिटी थी. ठीक है, और वो आइडेंटिटी क्या थी, याद है किसी को? अगर नोट किया हो, वो था डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फील्ड माइनस लाप्लासियन ऑफ फील्ड. ठीक है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी. तो इसे याद रखने के लिए मैंने बोला था इसका फ्रीक्वेंटली यूज होगा. ठीक है, तो इसका हमने इसकी वैल्यू पुट की आइडेंटिटी के फॉर्म में, डेल ऑफ डेल डॉट ई ग्रेडियंट ऑफ द डाइवर्जेंस माइनस लाप्लासियन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ डेल क्रॉस बी इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी. द वैल्यू ऑफ दिस विल बी गिवन बाय फोर्थ इक्वेशन व्हिच इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी. यहाँ पर अब डिफरेंशियल डबल हो गया. ठीक, और यहाँ क्या है, ये है ग्रेडियंट, वो डाइवर्जेंस ऑफ E. फर्स्ट इक्वेशन सेज दैट डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. Am I right? किशन, यस सुन रहे हो ना सब लोग? यस सर. हाँ, तो डेल डॉट ई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0, सो दिस विल वेनिश. तो हमारे पास आएगा माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विद माइनस साइन डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वायर. दिस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, डेल टू ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वायर. तो इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरिएबल के फॉर्म में, तो इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. सो दिस इक्वेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन. और इसी तरह से हम अगर फोर्थ इक्वेशन का कर्ल ले लें तो एक और इक्वेशन बन जाएगी. सो दैट इक्वेशन विल बी दिस. हमने केवल कर्ल लिया है. ठीक है, यहाँ पर इसे अगेन रिप्लेस कर सकते हैं, इनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और इसे आइडेंटिटी के थ्रू ओपन कर सकते हैं. ठीक है, इसे जब एक्सपेंड करते हैं तो आता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ बी माइनस ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी माइनस लाप्लासियन ऑफ बी. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बिकम दिस. डेल क्रॉस ई की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से पुट की एंड दैट इज माइनस डेल बी ओवर डेल टी. सही है ना? और
ये डेल डॉट बी दिस इज 0 बाय सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बनती है कुछ ऐसी, है ना। और फिर अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन थी हमारी ये, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन है ये, और हम क्या देखते हैं कि इन दोनों की शेप तो एक जैसी है, केवल बी की जगह पे ई आ गया, सब कुछ एक जैसा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक ही तरह से बिहेव करते हैं, दोनों के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज द लाप्लासियन, and what do you mean by Laplacian? Laplacian means the double derivative with respect to space. तो लेफ्ट हैंड साइड तो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है, और राइट हैंड साइड दिस इज डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहां तक ये दोनों इक्वेशंस कैसे आई? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो इन्हें हम बोलेंगे गवर्निंग इक्वेशंस फॉर ई एंड बी, एंड दीज आर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक, अच्छा, एक प्रॉपर्टी है लाप्लासियन के बारे में हमने सिंपली इतना तो पढ़ लिया था कि लाप्लासियन कैसे निकालते हैं किसी स्केलर का या किसी वेक्टर का, लेकिन हमने ये इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक, ऑफ कोर्स फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा कि उसका रेट भी कैसे चेंज हो रहा है, ठीक, टाइम रेट किस तरह से चेंज हो रहा है। अच्छा, इन अनदर वे अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल की पोजीशन टाइम के फंक्शन के फॉर्म में x है, x एज ए फंक्शन ऑफ t, देन व्हाट इज इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव dx over dt, व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी या फिर स्पीड कह देते हैं। अच्छा, और इसका डबल डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सो यहां पर ये फोर्स का टर्म है, ठीक है, जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ऐसे ही वो फोर्स स्पेस में भी चेंज हो रहा है। जब भी ऐसा होता है, इस तरह की इक्वेशन होती है, लाप्लासियन जहां पर आता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आता है, एंड दैट इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई बाय डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट बिकम्स द इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, सो ये एक इक्वेशन ऑफ वेव की तरह से काम करता है। दिस इज अ वेव एंड अगेन दिस इज आल्सो अ वेव। कैसे, उस इक्वेशन की भी हम बात करेंगे। सो दीज आर टू इक्वेशंस, और इनके कंक्लूजन्स ये हैं कि दोनों का फॉर्म सेम है, द बिहेवियर ऑफ ई एंड बी आर द सेम, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। ठीक, उसके बाद कैसे है फॉर्म सेम। ठीक, अच्छा, आगे और बात करते हैं। ये जो है ये दोनों प्रोपेगेटिंग वेव की तरह से बिहेव करते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्रोपेगेटिंग वेव। अगर एक कॉमन इक्वेशन फाइंड करें, बताने की कोशिश करें प्रोपेगेटिंग वेव की क्या होती है, देन दिस इज दिस इक्वेशन, Laplacian of y is equal to 1/v square del to y over del t square। अगर y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड t है, तो किसी वेव में होता क्या है, किसी वेव में वो वेव टाइम के साथ आगे भी चेंज हो रही होती है। किसी भी पार्टिकल के जो वाइब्रेशंस हैं या किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, मींस वो वाइब्रेट कर रहा होता है। साथ ही साथ वो वेव स्पेस में मूव कर रही होती है, प्रोपेगेटिंग वेव है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इस इक्वेशन में आ जाती है। ठीक है, वेयर दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। ओके, Yes, sir. ओके, तो अगर ऐसा है y इज द फंक्शन विच इज वेरिंग, इसी तरह से जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन विच इज वेरिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन विच इज वेरिंग, and these two are the functions of position and time both। ठीक, ऐसे ही ये इक्वेशन। so this is a equation of propagating wave। ओके, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर y की जगह पर e आ गया या b आ गया, तो 1/v स्क्वायर की पोजीशन पे क्या आया, म्यू नॉट एप्सिलॉन। यस सर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहें उस वेव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बनी है, या फिर इलेक्ट्रिक वेव की वेलोसिटी और मैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी, तो सिंपली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को 1/v स्क्वायर के इक्वल रख देते हैं। यस सर, 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यस, तो इससे हमें इसकी वेलोसिटी मालूम पड़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी मालूम पड़ जाएगी। बट बिफोर दैट
विद द फर्स्ट कंक्लूजन हमें ये भी पता पड़ेगा और इससे भी ये पता पड़ेगा कि दोनों की वेलोसिटी तो सेम है ना? सर स्पीड ऑफ लाइट है। हाँ हाँ, वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो दोनों की वेलोसिटी, दोनों वेव्स की वेलोसिटी सेम भी है, दोनों एक तरह से बिहेव करती हैं, इसका मतलब दोनों साथ साथ प्रोपगेट करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ वेव in which electric field and magnetic fields are behaving like a wave and those are propagating with the same velocity is known as electromagnetic wave. अभी तक ये पता नहीं पड़ा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमें इतना पता पड़ गया देयर इज ए existence of an electromagnetic wave in which electric field and magnetic fields are propagating and those are behaving similarly. ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की। ठीक, अच्छा चलो, फिलहाल उन्होंने स्पीड की बात अभी नहीं करते। चलो, अब अगर ये दोनों वेव की इक्वेशंस हैं, देन देयर मस्ट बी ए सॉल्यूशन। हमें इक्वेशन मालूम पड़ गई, अभी तक सॉल्यूशन पता नहीं पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बट क्योंकि ये वेव की इक्वेशन है तो कोई सॉल्यूशन ऐसा ही रहा होगा, वेव टाइप का सॉल्यूशन। वेव का सॉल्यूशन तुमने पढ़ा था y = a sin ओमेगा t minus kx, ऐसी कुछ पढ़ा था ना, या फिर cos ओमेगा t minus kx। फर्स्ट यूनिट में भी इसी टाइप का कुछ सॉल्यूशन पढ़ा था, वेव का सॉल्यूशन। Yes, sir. तो वेव सॉल्यूशन साइन के फॉर्म में भी हो सकता है, कॉस के फॉर्म में भी हो सकता है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकता है। तो जनरली वेव का जो जनरल फॉर्म लिखा जाता है वो लिखा जाता है दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा kx minus omega t। ठीक, so this solution is written as the electric field which is a function of r and t यहाँ से, r यहाँ से, ठीक है, and this is a vector, so electric field which is a vector as a function of position and time is equal to the amplitude, क्योंकि वेव है तो एम्पलीट्यूड भी होगा और वो वेक्टर ही होना चाहिए। ठीक है, और वो किसी का फंक्शन भी नहीं होगा, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन और कॉस, तो हमने लिखा एक्सपोनेंशियल आयोटा k dot r minus omega t, kx minus omega t, where this k is given by, the value of k is given by 2 pi by lambda। तुमने जो इक्वेशन पढ़ी होगी साइन के फॉर्म में, वो पढ़ी होगी साइन ऑफ 2 pi x upon lambda minus small t upon capital T, अगर तुम लोगों को याद हो तो। याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह की इक्वेशन को हमने सिंपली k dot r minus omega t लिख दिया। ठीक है, where k is known as wave propagation vector and the direction of this k vector is along the velocity of the wave। हमने डिफाइन किया कि the value of k is 2 pi by lambda and r is any position, r is any position at which we are finding the value of electric field। ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो सिंपली हो जाएगा 2 pi x upon lambda एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। ठीक, b which is a vector as a function of r and t is equal to the vector amplitude multiplied by exponential iota k dot r minus omega t। okay, ठीक, the value of the direction of k is along the propagation of the wave। और अब हम वेलोसिटी अगर फाइंड करें, देन दोनों की वेलोसिटी जो कि सेम है, उसके लिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 बाय v स्क्वायर रखेंगे एंड देन v विल बी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और जैसे ही मैक्सवेल ने ये सब किया, इन दोनों को सॉल्व किया और उन्होंने मालूम किया, फाइंड किया कि वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तब तक फोको ने स्पीड ऑफ लाइट निकाल ली थी। Give me a minute. Okay, we'll have to bear it. Okay, तो जैसे ही उन्हें मैक्सवेल को ये पता पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी लाइट के इक्वल होती है, तो उन्होंने कंक्लूजन इसका ये निकाला that light is also an electromagnetic wave।
और ये कैसे किया? फोको ने बहुत बड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। किसी ने पढ़ा है फोको का एक्सपेरिमेंट? फोको ने ये लाइट की वेलोसिटी कैसे फाइंड की थी? बहुत बड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, उसमें वाटर भी रखा और बहुत सारे लेंसेज थे, और लेंसेज के साथ साथ मतलब बहुत 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 ही ज्यादा तामझाम थी। ठीक है, बहुत बड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, और उससे उन्होंने फाइंड किया था कुछ दिनों में कि लाइट की वेलोसिटी क्या है। और मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने केवल कॉपी और पेन उठाया और केवल इक्वेशंस को सॉल्व किया, और उससे उन्होंने मालूम कर लिया लाइट की वेलोसिटी इतनी होती है, और ये लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इधर क्लियर? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ, किसी ने कुछ पूछा कि मनन? सर न्यूटन ने करा था जिसमें एरर आया था, फिर लाप्लासियन ने करेक्शन दिया था कि हाँ, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। वो तो इसलिए दिया था कि वो ये प्रूव करना चाह रहे थे कि लाइट है क्या। किसी ने, न्यूटन ने कहा ये पार्टिकल्स हैं, ठीक, और फिर हाइगन आया, हाइगन ने कहा वेव हैं, लेकिन अभी भी हाइगन इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव मानते थे, ट्रांसवर्स वेव नहीं मानते थे। उसके बाद फोको भी आए, और तब तक ये डिबेट चली जा रही थी कि लाइट है कौन सी तरह की वेव है, अगर वेव है तो। ठीक, और उस समय तक ये भी प्रूव हो गया था कि लाइट में वेव प्रॉपर्टी तो है, लाइट इज अ वेव, क्योंकि बहुत सारे फिनोमेना जो केवल वेव में होते हैं वो लाइट में थे। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि ट्रांसवर्स वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और इसका जो ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये पता पड़ा था पोलराइजेशन से, लेकिन फिर भी अभी वेव के बारे में कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो वेव नेचर से क्लियर नहीं होती थी। तो अब ये मैक्सवेल से ये क्लियर हुआ कि वेव है ये, एग्जैक्टली यस, दिस कैन बी डिफाइंड एज ए वेव। ठीक, हालांकि उसके बाद भी कुछ और डेवलपमेंट्स हुए, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन इस कोर्स में उनके बारे में भी बात की जाएगी। अच्छा, खैर, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को कोई कुछ। सर ये जो इक्वेशन है सोल्यूशन, हाँ, इसमें सर ये इमेजिनरी नंबर आने का मतलब क्या है? हाँ, आयोटा आने का? यस, इमेजिनरी के लिए ऐसा है कि तुमने डे मॉइवर थ्योरम पढ़ी है, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ जी सर, ये पढ़ा है मैंने। हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ जब एक्सपोनेंशियल में आयोटा कहीं होगा तभी हम उसे साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज दैट इज ए नंबर। एक्सपोनेंशियल 2 इज ए नंबर, ठीक है, e to the power 2 इज ए नंबर, दिस इज नॉट ए वेव। तो जब एक्सपोनेंशियल पर आयोटा होगा then only it can show the wave nature, और उस वेव नेचर में साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन होगा। ये तो क्लियर होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते, वेव या तो कॉस थीटा के फॉर्म में दिखाओ या फिर साइन थीटा के फॉर्म में दिखाओ, हालांकि हमने अगर किसी वेरिएबल को चेंज नहीं किया है तो, ठीक है, लेकिन हो दोनों में से कुछ भी सकता है। तो इसके लिए आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो डिफरेंट रिजीम्स को, दो डिफरेंट बिहेवियर्स को एक साथ कंबाइन करके शो कर सकता है, जो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है वो साइमल्टेनियसली हो सकता है। एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल हैं, इसे इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल। और इसका मतलब ये होता है कि एक्स में अगर कोई चेंज किया तो कोई जरूरी नहीं है कि वाई में चेंज हो जाए, ठीक है। y एंड x आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस। और किसी भी इमेजिनरी नंबर में x और y को कंबाइन कर दिया जाता है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आता है तो वो हमेशा जनरली यूज होता है दो डिफरेंट रिजीम्स को कंबाइन करने के लिए, अगर दोनों का इफेक्ट साथ साथ हो सकता है लेकिन वो रिजीम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का यूज किया। ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इस वेव को कॉस और साइन इन दोनों के ही टर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन या तो कॉस के टर्म में या फिर साइन के टर्म में। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है। और एक बात और भी थी कि इसे हमें जनरलाइज करना था। ये एक लेमैन एक्सप्लेनेशन हो सकती है तुम्हारे क्वेश्चन की, कि हमें इसे एक जनरलाइज वे में शो करना था, जिसमें हमें पता ही नहीं था कि कॉस करें या साइन करें, इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल कर ये डे मॉइवर थ्योरम लगा के एक्सपोनेंशियल आयोटा के साथ कर दिया। ये एक लेमैन एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इज द प्रीवियस वन।
थैंक यू सर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता पड़ गया कि अब हमें पता पड़ गया कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। और अब हमें ये भी पता करना है कि दोनों बिहेव तो एक ही तरह से करते हैं, लेकिन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, ई और बी में। अगेन ये जो सॉल्यूशन थे ये तो एम्पिरिकली लिखे हुए थे, हमने सॉल्व करके तो लिखे नहीं, हमें तो केवल इंफॉर्मेशन थी कुछ, उन सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा गैदर कर दिया, एक साथ कर दिया, बस इस तरह से ये सॉल्यूशन बन गए। तो क्या ये सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस को भी? ठीक, तो ये सॉल्यूशंस मैक्सवेल इक्वेशन को फॉलो करने चाहिए, ये इन्हें को फॉलो करना चाहिए। और वो कैसे चेक करें? हम इन सॉल्यूशंस को मैक्सवेल इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक, हमारे पास 4 इक्वेशंस है ये, तो एक एक करके सब में इन्हें पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले किसी पहली इक्वेशन में कर देते हैं, ठीक। और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि k क्या है और e क्या है। e इज, सपोज e के बारे में बात कर रहे हैं, b के लिए सब कुछ वैसा ही होगा जैसा e के लिए है, क्योंकि सब कुछ बिहेवियर तो सेम ही है। तो यहाँ this k can be defined in terms of its components along x, y and z। तो इस तरह से हम इसे k को जब भी आगे लिखेंगे k वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे। यहाँ kx, ky, kz ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं और ये यूनिट वेक्टर्स हैं। इसी तरह से जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे भी हमने कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ के बाद स्टार्ट होता है तुम लोगों का काम, वो ये कि इन्हें यहाँ पे पुट करो और इसका डाइवर्जेंस फाइंड करो। मींस फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन में पुट करो और फिर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो उसके लिए सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, है ना। ये हमने केवल वो जो एम्पलीट्यूड्स थे उन्हें रख दिया, वो वेक्टर थे लेकिन वो फंक्शंस नहीं थे किसी के, ठीक है, वो कांस्टेंट्स थे, ठीक। तो चलो बताओ कौन कैसे सॉल्व करोगे। तो हमें केवल डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, डेल ऑपरेटर, डॉट प्रोडक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्यूशन। कैसे करोगे सॉल्व? ये नंबर्स हैं, ये ध्यान रखना, दीज आर द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स, लेकिन वेक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x, this y, this z, this is not number, this can be derivative, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमने k डॉट r लिखा था, where r is I cap x plus j cap y plus k cap z, ठीक है। ध्यान से देखना, इसे स्किप ना हो जाए कहीं, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके रखना। तो r जो कि पोजीशन वेक्टर है, इसकी वैल्यू पुट की, k की वैल्यू ये थी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके लिखा, तो वो आया ये kx into x plus ky into y plus kz into z minus ओमेगा t, ठीक है। जब इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो केवल kx आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो केवल ky आएगा, z के रेस्पेक्ट में केवल kz आएगा, और t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ओमेगा आएगा इस ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो चलो बताओ कौन बताएगा इसे सॉल्व करके, थोड़ा टाइम लगेगा। इज दैट सॉल्वेबल और नॉट? पहले मुझे केवल इतना बताओ, इज इट सॉल्वेबल? जानवी? यस सर। ठीक। जशनप्रीत? यस सर। सॉल्वेबल है ये? देखते हैं, ठीक है। और खुशी? यस सर। कर सकते हो इसे सॉल्व? सर मे बी यस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही है, डॉट प्रोडक्ट में यस सर, ये वाला ऑपरेटर आयोटा वाले कंपोनेंट के साथ जाएगा, मतलब आयोटा के साथ जो कुछ, वो आयोटा नहीं, आई कैप इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और यस सर, क्या दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट। यस ऐसे y के साथ क्या है, e j कैप के साथ क्या है, e नॉट y मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, उन्हें y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है और सबको आगे पुट करना है, यही तो है। किशन? यस सर। हो सकता है ना सॉल्व? हाँ सर, हो जाएगा। हाँ ठीक, बस अगर हो जाएगा तो तुम्हारे पास ये आएगा नेक्स्ट। देखो डेल डॉट ई, ये तो 0 था मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हमने 0 रख दिया डायरेक्टली। और जब इसे डेरिवेट किया
ई नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, जिसमें ये तो नंबर है एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया, तो ई नॉट एक्स तो जैसा है वैसे ही रखा रहेगा, और इसका डिफरेंशियल होगा, तो ऊपर है आयोटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड माइनस ओमेगा टी, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया इसे, तो यहाँ से के एक्स आ गया और आयोटा आयोटा के एक्स मल्टीप्लाई बाय होल एक्सपोनेंशियल पार्ट, वो यहाँ रखा हुआ है। इसी तरह से के वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो ये पार्ट आएगा, जेड के रेस्पेक्ट में ये पार्ट आएगा, वेयर आई इज आयोटा, दिस आयोटा। ठीक है, ये वाला टर्म क्लियर है सबको? Yes, sir. और अगर ये क्लियर है तो आयोटा तो सब में से कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। जैसे ही बाहर लेंगे तो ये आएगा ई नॉट एक्स इंटू के एक्स, ई नॉट वाई इंटू के वाई प्लस ई नॉट जेड इंटू के जेड। अरे ये क्या है, ये फिर इसे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, के एक्स इंटू ई नॉट एक्स ये रखा है, के वाई इंटू ई नॉट वाई ये रखा है। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था वो ये कुछ बन के निकल के आया, दिस। ठीक है, वेयर दिस पार्ट इज के वेक्टर एंड दिस पार्ट इज एम्पलीट्यूड E naught vector. है ना, और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर का पार्ट है मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल, एम्पलीट्यूड मींस मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल मींस ई वेक्टर, तो दिस इज आयोटा into k vector dot product with this dot product with electric field vector as a function of r and t, position and t। ठीक, और ये जीरो है क्योंकि हमें पता है ये जीरो आता है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू। ठीक, ये वाली बात कैसे आई, ये क्लियर है ना? यहाँ तक नो सर। नहीं, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ये वाली बात? यस। और फिर ये सेकंड लाइन, हाँ। और उसके बाद ये थर्ड लाइन, ये अच्छा देखो आयोटा ये रखा है, आयोटा ये यहाँ पर है, ये क्या है, आई कैप के एक्स जे कैप के वाई प्लस के जेड के कैप के जेड, ये तो के वेक्टर है, यस सर। वेव प्रोपगेशन वेक्टर, वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, ये क्या है, दिस इज ई नॉट एज ए वेक्टर मतलब एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल भाई आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी, ये तो था सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन। देखो ये ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो ये ई रख दिया, तो हमारे पास आया आयोटा के डॉट ई इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से अगर b के लिए फाइंड करेंगे तो आएगा आयोटा के डॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि सब कुछ एक जैसा ही। ठीक है सर, एक बार लास्ट इक्वेशन एक बार ये वाली समझा दीजिए। यस सर। अच्छा देखो प्रीवियस इक्वेशन थी यस यस कहाँ थे, यस, तो यहाँ पर तुम देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड माइनस ओमेगा टी, है ना, और यहाँ Yes, पर sir. क्या है, ये इसमें ये वाला पार्ट आई कैप ई नॉट एक्स जे कैप ई नॉट वाई प्लस के कैप ई नॉट जेड ई एक्सपोनेंशियल, वेक्टर हो गया ये। तो ई वेक्टर हो गया, तो ई यस वेक्टर सर। डॉट प्रोडक्ट विद के वेक्टर, है ना, ओके सर। ये तो के वेक्टर है मल्टीप्लाई बाय, यस सर। तो आयोटा के वेक्टर डॉट ई वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 चल रहा था सब कुछ, यस सर। डेल डॉट ई इज 0। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल डॉट बी में पुट करना पड़ेगा विच इज 0, और वो इसी की तरह से निकल के आएगा आयोटा के डॉट बी। ओके सर, गॉट इट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा अब इससे एक बात और मालूम पड़ेगी कि k डॉट e इज ऑलवेज 0, k डॉट b इज ऑलवेज 0। दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 दोनों पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होता है? Perpendicular. Exactly. Means electric field vector and magnetic field vector हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू k, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू k, और k था क्या? डायरेक्शन ऑफ k इज व्हाट?
डायरेक्शन ऑफ के इज अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव, मींस जो भी लाइट की वो उस वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन के की है। इससे हमें पता पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों लाइट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन आधी मिल गई, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कौन सी डायरेक्शन रखते हैं। और अभी तक हमने मैक्सवेल इक्वेशन की केवल पहली दो इक्वेशंस का यूज किया है। हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सॉल्यूशंस को थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में पुट करें तो हमें कर्ल लेना पड़ेगा डेल क्रॉस ई। तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ ये एज ए होमवर्क कि डेल क्रॉस ई फाइंड करना और डेल बी ओवर डेल टी इसके इक्वल रखना। मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं कर पाता कोई तो ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। तो जब इन दोनों में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा k क्रॉस e इज इक्वल टू ओमेगा बी एंड k क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ई। इससे ये प्रूव होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो k क्रॉस e की डायरेक्शन k और e दोनों के ही परपेंडिकुलर है एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ b। उससे मालूम पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और k वेक्टर मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू। डेल क्रॉस ई फाइंड करना, डेल क्रॉस बी फाइंड करना। इसकी अगर तुम्हें हेल्प चाहिए हो तो ये एन के वर्मा में से थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। तो आज की क्लास में हमने वैक्यूम को डिफाइन किया, उसमें मैक्सवेल इक्वेशंस को डिफाइन किया और इनके सॉल्यूशंस फाइंड किए विद द हेल्प ऑफ कर्ल ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस। फिर जो दो इक्वेशंस निकली उनसे सॉल्यूशंस फाइंड किए, उन सॉल्यूशंस को मैक्सवेल इक्वेशन में पुट किया। पहली दो इक्वेशन में पुट करके हमें पता पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, और थर्ड और फोर्थ से हमें मालूम पड़ेगा कि ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। And this type of wave in which electric field and magnetic field are moving along single direction, same direction with same velocity, with the property that those are perpendicular to k vector, is known as electromagnetic wave. ठीक है, तो इससे मैं पता पड़ा था ये वाला सॉल्यूशन कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे छोड़ते हैं क्लास को और ये इन दोनों को सॉल्व कर लेना। ठीक है, सारे लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेना। तो ठीक है, तो अगर कोई और क्वेरी है तो पूछो, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। सर यस सर, आप टाइम कंज्यूमिंग इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। एग्जैक्टली। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, और बताओ? ओके ठीक है, तो अभी हम एंड करते हैं क्लास को, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली होगी इसलिए।